So, sir, my topic is Introduction to Metrology and Mechanical Measurements. Basically, what it means, and it's just an introduction, and it's a very important topic in the normal practical field and also for the mechanical students. So, what first we are going to discuss what we are going to learn. So, first is our topic. What is the need of inspection? Basically, inspection means uh, uh, seeking something or taking measuring or basically or knowing about something what is going on process. So what happens if a product is made, suppose a ball is made first first time, if it's made, its diameter maybe it's is 25 mm, but the other time it's made it may be a 24 mm or 26 mm. So it basically um, lacks of accuracy. So to remove this defects, we there is a need of inspection. So there are two types of basically inspections. First one is active inspection and second one is passive inspection. In active inspection, we normally what we do is when the process is going online, we just inspect the element and make the corrective measures. But in passive inspection, what happens when our product is ready, we inspect the element and then we make some corrective measures, which is a, I think in my own opinion, is a bad process, bad practice. Now coming to introduction to metrology. In this we are going to learn what is metrology and its key aspects, types of metrology. We are going to know what are the types of metrologies in which we practice in our practical life. Then we are going to know about the measurements, need of measurements and methods which we in our daily life we require and what we need. Then after coming to what are the instruments we are going to measure with. Then the most important thing, what are the factors that affect the accuracy of the measuring instruments. And at last but not the least, we are going to discuss about the units, basically the most important thing in measuring. So now coming to needs for inspection, as I already told you that there are two types of inspection and its need. So what does the inspection provides us? This slide is basically about the what it provides. So it just to it just the possibility of re-engineering the process. What it means is that if we have actually I would like to आंसर दिस इन हिंदी. सो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हमने रेडी किया और उसका क्या कहते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो अब हमको पता है कि उसमें कहाँ क्या डिफेक्ट आया इंस्पेक्शन करते समय, तो हम उसको फिर से री इंजीनियर कर सकते हैं, उस पर रीवर्क कर सकते हैं. टू परचेज द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें कितने साइज का मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए और कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें इंस्पेक्शन में उससे आसानी होती है आगे जाके जब हम एक लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं, टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम एरियाज. अब इंस्पेक्शन से क्या होता है कि अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का नॉर्मली, तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा और आगे जाके किस पार्ट्स में क्या है उसको वो करना है. Now coming to the metrology. Metrology is basically known as the fabric of science and technology. So metrology basically होती क्या है? Metrology जो है वो हमारी एक साइंटिफिक मेजरमेंट की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स है. तो मेट्रोलॉजी बेसिकली दो चीज़ों से अपना उसके मेन दो कंपोनेंट्स है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. अगर बात की जाए इंस्पेक्शन के बाद प्रिसीजन और एक्यूरेसी, तो जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. जैसे कि इसमें लिखा है कि रिक्वायर्ड एट द मिनिमम कॉस्ट. अब आते हैं अप्लाइड फील्ड्स ऑफ मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी का एक वास्ट स्कोप है.
हर जगह पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हैवी ड्यूटी मशीनरीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, और हमारा वेदरिंग वगैरह में, और हमारे जो नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ मेट्रोलॉजी। तो जो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ मेट्रोलॉजी हैं वो पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि प्रिसीजन हो गया हमारा और एक्यूरेसी हो गया। तो सबसे पहले आते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। सपोज कीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, तो जो हमारी बॉल है हमें उसकी डायमीटर चाहिए 25 mm। अब जब वो बना तो वो 24.9 होगा, तो हमारी जो टारगेट वैल्यू थी वो थी हमारी 25 mm। और जब हमने उसको बनाया उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत दिक्कत, थोड़ा बड़ा या छोटा हो ही जाता है उसके बनने के टाइम पे। तो बॉल का जो आया वो आया 24.9 mm, जो उसका डायमीटर आया, तो हम उसको एक्यूरेट कहेंगे in terms of mechanical industries. So coming to the definitions, it is the degree to which the measured value of the quality characteristics agree the true value। तो ट्रू वैल्यू के टर्म्स में इसमें एक चीज होती है टॉलरेंस वैल्यू। सपोज कीजिए कोई भी जब नॉर्मल लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें कुछ हम लोग टॉलरेंस रखते हैं। टॉलरेंस क्या होता है कि किसी भी, जैसे बॉल का डायमीटर है हमारी, तो वो 25 mm से 24 mm के बीच में होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को एकदम डुप्लीकेट नहीं बना सकते सेम, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, मतलब उसके लेंथ में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉलरेंस वैल्यू रखते हैं या कुछ स्टैंडर्ड डिविएशंस रखते हैं, जिसके लिए हम उसको के आराम से हमारे काम चलते रहें। अब आते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन बेसिकली हमारा जो है क्या है, एक्यूरेसी को बार बार, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है या फिर कोई चीज सॉरी टारगेट वैल्यू है या अचीव्ड वैल्यू है हमारी, तो उसको हम सिमिलरली वही वही प्रोडक्ट हमको मिलता रहे। जैसे कि मान लीजिए बॉल थी, तो अब हमें 10 बॉल बनानी है, सबका डायमीटर जो है 24 पॉइंट, जैसे हमारी टारगेट वैल्यू 25 थी, और जो पहली बॉल जब हमने बनाई तो उसका जो था डायमीटर आया हमारा 24.9। सेकंड बॉल बनाई उसका डायमीटर आया 24.91। थर्ड बॉल बनाई उसका डायमीटर आया 24.91 और 912 समथिंग। तो इसको हम कहेंगे एक प्रिसाइज वैल्यू। अब आते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस पे। तो जैसे कि देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमारा है, उससे पहले मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा। तो एक्यूरेट और प्रिसीजन, तो ये जो हमारी डॉटेड वाली लाइंस है, ये हमारी जो अचीव हमें करना है वैल्यू उसका हैगा। और यहाँ पे एक बेसिकली और होती है एक लाइन, तो वो टारगेट वैल्यू होती है जिससे हम अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी, मान लीजिए ये जो कर्व है हमारा, तो ये हमारा जो है टारगेट वैल्यू के पास है, ये सॉरी ये जो लाइन है वो हमारी टारगेट अचीव वैल्यू टारगेट वैल्यू के पास है, और कर्व हमारा नॉर्मल ऐसा ही है। तो ये उसको हम कहेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, जैसे कि ये वाला कर्व है। बट अगर ये टारगेट वैल्यू से दूर है और अचीव वैल्यू हमारी नहीं है और कर्व भी ऐसा ही है, कर्व बेसिकली जो हमारे मैकेनिकल उसमें होता है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं इसको। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये ना जो हमारा पहला वाला ग्राफ है वो हमें शो कर रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो नॉट ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। सेकंड वाला जो ग्राफ है वो हमें बता रहा है कि वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट? क्योंकि हमें अचीव यहाँ करना था डॉटेड वाली लाइंस पे जो हमारी अचीव वैल्यू थी या टारगेट वैल्यू, बट हमें वो मिली नहीं। बट प्रिसाइज इसलिए क्योंकि वो रिपीटेडली वही वैल्यू आ रही थी जो पहले आ रही थी। एक्यूरेट थर्ड वाला ग्राफ है जो वो है हमारा एक्यूरेट एंड बट प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राफ में जो डिविएशन है वो काफी ज्यादा है। तो हमारा जो पहली अचीव जो वैल्यू पहले आई थी उससे काफी ज्यादा डिविएशन आ रहा था, इस वजह से। फोर्थ वाला जो लास्ट ग्राफ है वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ है। तो इस पे चलते हैं। तो जैसे कि इमेज में देख सकते हैं डार्ट्स फेंके गए हैं, तो हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी वाला है पहले, कि सारे डार्ट्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगे हैं जितने भी हमने फेंके, तो वो एक्यूरेसी है। सेम वैसे ही है कि जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए सबका डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है और जो हमें अचीव करना था, और तो उसको हम लोग कहेंगे हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेट प्रोडक्ट। और जैसे कि सेकंड वाले उसमें देखते हैं कि डार्ट जो है ना ही वो लो प्रिसीजन है और हाई एक्यूरेसी है। कैसे? क्योंकि जो डार्ट के सारे जो मिडल पॉइंट है उसके पास ही जितने भी डार्ट फेंके गए हैं सारे फेंके गए हैं, बट लो प्रिसीजन इसलिए है क्योंकि सब लोगों का जो डिविएशन है वो ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही हमारा थर्ड ग्राफ है एंड थर्ड
इमेज है एंड फोर्थ इमेज है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी बेसिकली हमारी तीन टाइप की होती हैं, जैसे कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी एंड जो है हमारी लीगल मेट्रोलॉजी। और एक और फोर्थ टाइप के है जो कि है फंडामेंटल मेट्रोलॉजी। तो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी बेसिकली हमारी जो डील करती है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट्स स्टैंडर्ड्स के साथ डील करती है एट हाई लेवल्स और उनके मेंटेनेंस के साथ। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी क्या करती है, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उनकी देख रेख और उसमें क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी चेकिंग वगैरह के लिए और यूज होती है उसमें। लीगल मेट्रोलॉजी हमारी बेसिकली एक वास्ट स्कोप है, तो वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस वगैरह और हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह उन सब में यूज होती है। मैन्युफैक्चरिंग और कैलिब्रेशन जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स होते हैं, डेली लाइफ इक्विपमेंट्स, उनके लिए में यूज होती है। अब फंडामेंटल मेट्रोलॉजी बेसिकली इन सबका एक कॉम्बिनेशन टाइप का मान लीजिए, जैसे मेगाट्रॉनिक्स है, तो बेसिकली साइंटिफिक मेट्रोलॉजी का की तरह उसको डिस्क्राइब करते हैं, बट उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ पार्ट्स लीगल मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी के भी होते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट कुछ नहीं, बस सिंपल एक हमारे डायमेंशनल एनालिसिस है न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी भी चीज का। अब नीड ऑफ मेजरमेंट क्या मेनली यूज होता है, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के लिए मेजरमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब हमारे यहाँ कुछ मेजरिंग वो होते हैं, जैसे जो डिस्टेंस है हम लोग किलोमीटर मीटर माइल से उसमें नापते हैं। बट अब मान लीजिए कि अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं डिराइव किए गए तो कहीं कोई और स्टैंडर्ड होता, कहीं और होता, कोई कह रहा है किलोमीटर में रास्ता और कुछ मीटर में, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मेजरमेंट के कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। इंटरचेंजेबिलिटी एक टर्म है जो कि हमारा बेसिकली होल और शाफ्ट वाले केस में आता है, कि जहाँ पे हम लोगों को दो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बेसिकली अलग होते हैं, बट उनके जो प्रोसेस है वो साथ में होना होता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कहीं कहीं पे भी गए, दुकान पे भी अगर कुछ सामान खरीदने गए और वो कहता है कि मैंने 2 दिया है, तो 2 क्या दिया है या फिर कुछ समथिंग, तो वैलिडेटेट द डिज़ाइन। बेसिकली अगर मैकेनिकल में बात की जाए या फिर हम लोगों का डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ में, तो डिज़ाइन में मेजरमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जितनी भी डायमेंशंस वगैरह अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आता है या फिर कहीं भी आगे पीछे होता है, तो जैसे मान लीजिए एक होल है और एक शाफ्ट है, तो अगर उसमें डिफरेंस आता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में जैसे पहले पिक देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मेजरिंग डिवाइस का यूज करके उससे डायरेक्ट मेथड से उससे मेजर करते हैं। इसके एग्जांपल्स हम वर्नियर कैलिपर और हमारा स्क्रू गॉज वगैरह ले सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों के पास होती है लेंथ, ब्रेथ, हाइट और या फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उससे हम लोग एक उसका जैसे एरिया निकाला जाता है हमारा किसी भी चीज का, तो हम वो इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है। कंपैरेटिव मेथड में हम लोग बेसिकली किसी भी एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर करके फिर उसको करते हैं, उसको उसको मेजर करते हैं। कोइंसिडेंस में हम लोग बेसिकली जैसे मान लीजिए एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग कुछ भी बीम या लाइट की बीम्स को कोइंसिडेंस करते हैं, उसके थ्रू हम लोग फिर उसको मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को। कॉन्टैक्ट मेथड में हमारा जैसे सेंसर से मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट मेथड में कहते हैं। डिफ्लेक्शन में बेसिकली हमारे जो होते हैं प्रेशर गॉज वगैरह यूज होते हैं। तो जैसे कि हमारे टायर वगैरह में हवा पहले चेक होती है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं मतलब डिफ्लेक्शन मेथड वगैरह। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में हमारे पास बेसिकली लिक्विड का मेजरमेंट होता है या वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट। अब आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर सिलेक्शंस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे कई टाइप के होते हैं, और उनका सिलेक्शन सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है उनके फंक्शन के हिसाब से। सबसे पहले जैसे मान लीजिए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारा स्केल वगैरह हो गया, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कंपास वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। सरफेस रफनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसका खुद का एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है। शेप चेकिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे फंक्शंस वाले के अंदर आते हैं। बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, सेकंड जो हमारा टर्म है वो है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस बेस पे, एक्यूरेसी के बेस पे जो वो होते हैं। तो इसमें अपने 3 आते हैं, पहला है मोस्ट एक्यूरेट, मॉडरेट एक्यूरेट और फिर आता है बिलो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स।
फिर जो थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हमें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी जो है वो डिफर करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ कैलिब्रेशन फॉर सेटिंग एक्यूरेसी पहला। अब मान लीजिए जैसे स्केल से हम लोग कोई लाइन खींच रहे हैं और उसमें हमें देखना है, तो अगर हम अपनी आईज 90 डिग्री पे नहीं रखते हैं या आगे पीछे करते हैं तो उसमें हमारा क्या कहते हैं, तो उसमें हम गलत डायमेंशन देख लेंगे, तो इसमें हम लोग कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। वर्कपीस कंट्रोल ड्यूरिंग मेजरमेंट के, जो वर्कपीस है उसको, जो हमारा जो ह्यूमन है वो उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है या मशीन है उसको कैसे यूज कर रही है, तो उससे भी हमारे एक्यूरेसी में दिक्कत आती है। अब आते हैं इंस्पेक्टर, जैसे ह्यूमन फैक्टर पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो ह्यूमंस जो किसी को कोई आई डिफेक्ट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसके, तो उस वजह से भी जो हमारा है एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, अदर फैक्टर्स में नॉर्मली अगर फिजिकल बात में करा जाए तो उसमें लाइट जो हो गई, तो उस सब से भी एक्यूरेसी में किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में हमारी बेसिकली तीन टाइप की जो कैटेगरीज हैं वो है बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होती हैं? बेस यूनिट्स बिल्कुल ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो कि किसी भी चीज से डिराइव नहीं होती। जैसे लेंथ है, नॉर्मली हम इसको और नहीं तोड़ सकते नीचे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मतलब और डिवाइड नहीं कर सकते नीचे। डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? ड्राइव यूनिट होती हैं जो हमारी बेस यूनिट्स के मिला के बनती हैं। जैसे कि एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाता है बेसिकली, तो और उसकी यूनिट्स वगैरह ये हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन लोगों का जो वो होता है अपना, जैसे एंगल वगैरह मेजर करना होता है हम लोगों को, तो उसमें यूज होती हैं। थैंक यू सर।